Hello and welcome to this video. Today we will be discussing the origin and the evolution of Earth's crust. तो अर्थ क्रस्ट के बारे में पहले थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ्स क्रस्ट इज इट इज नॉट अ होमोजेनस. मतलब अर्थ क्रस्ट इज नॉट होमोजेनस इन नेचर. रिमेंबर हमने पुराने वीडियोस में ये देखा है कि देयर इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड देयर इज अ ओशनिक क्रस्ट एंड दीज बोथ हैव डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी. एक होमोजेनस क्रस्ट नहीं है ऑल ओवर द अर्थ कि सब कुछ सेम ही है. द ओशंस are not the extended versions of the continental crust. They are two separate bodies in themselves with respect to their structure, with respect to their composition and their properties. दोनों अलग हैं. So the first thing to know is that ये जो अर्थ की क्रस्ट है it is not homogeneous. You can write as I am speaking. So the earth's crust is not homogeneous. It consists of different crusts like oceanic crust and continental crust. They have differences with respect to properties, etc. So, when oceans were formed first, we all know that oceans were formed first and then the continents were formed later. But we have earlier also, while discussing the plate tectonic, we have discussed one topic which was the mystery of missing ocean. Mystery of मिसिंग ओशन. उसमें हमने क्या देखा था कि जो ओशंस हैं दे फॉर्म्ड अर्लियर देन द कॉन्टिनेंट बट नोवेयर इन द वर्ल्ड वी हैव करेंटली एनी ओशनिक क्रस्ट ओल्डर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो अब कैसा था, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर हमने डिस्कस किया था कि देर इज अ प्रोसेस ऑफ पार्शियल मेल्टिंग. उसमें क्या हुआ था, द ओशन बसाल्ट it converted into andesite and then granite, and at the subduction zone it got subducted, and therefore we concluded that the oceans are not permanent. They are matlab they keep on recycling. Oceans are not permanent, है ना, इनकी रिसाइकलिंग होती रहती है. at the at the Mars the ocean floor is formed and it is again getting subducted and it gets destroyed. Then this mantle this magma form again from the convection cells comes up, and at the more new oceanic floor is again created. So this is a circle. It keeps on repeating and the ocean floor is getting destroyed and created simultaneously in various parts of the earth. So ये चीज हो गई ओशन में. एक चीज हमने देखी थी कॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट्स में क्या था, कॉन्टिनेंट्स when they are once formed they cannot be destroyed, है ना. they can fuse, they can collide, they can grow in size, they can break and even they can drift, but they cannot be destroyed unlike oceans. तो this point should be clear कि जो oceans हैं ये destroy हो सकते हैं whereas the continents are indestructible. हाँ, ये fuse हो सकते हैं, drift कर सकते हैं, break हो सकते हैं, collide कर सकते हैं, grow in size भी हो सकता है इनका. जब collide करेंगे तो they grow in size. So now the fourth point, it is the continent जो भी हमारे पास आज है और जो भी अर्थ की क्रस्ट जैसी आज दिखती है, we can say it is a product. The continents we have today and the earth's crust we have today is the product of what? It is the product of billions of years of evolution. अब ये सब जो भी हो रहा है, this formation of oceanic floor at the more, उनका subduction, destruction, new formation and this continent का fusion, है ना, collision, ये सब कुछ हजार साल या लाख साल की बात नहीं है. These are some processes operating in billion of years. So this all the continent that we have today and the earth's crust that we have today is a product of billion of years of evolution. And the earth's crust जैसी आज दिखती है it was never like that. जो अर्लीस्ट क्रस्ट थी ना
it got transformed, and as tectonic operated through the Earth's history, it got evolved. तो जब हमने पढ़ा था कि व्हेन वेगनर ट्राइड डिटेलिंग द अर्थ्स क्रस्ट हिस्ट्री, तो ही स्टार्टेड फ्रॉम पेलोजोइक पेंजिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, which he said कि got broke into the मेसोजोइक टाइम्स. वो पेंजिया ब्रोक होता है अराउंड 180 से 200 मिलियन साल पहले. सो जो टेक्टोनिक थ्योरी भी इसके बाद आई थी, इन इट्स इनिशियल डेवलपमेंट it also discussed mostly what must have happened since the Pangea of Paleozoic time. तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये निकलता है कि जो अर्लियर पार्ट्स ऑफ अर्थ इवोल्यूशन था, जो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट क्रस्ट था, वो प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है ओरिजिनली उसका पार्ट नहीं था. हमने डिस्कस किया था, we discussed that the plate tectonic theory it came in the 1960s. आज हम जब उसको पढ़ते हैं तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, बट क्योंकि हम तो अभी 2026 में पढ़ रहे हैं, बट जब ये आई थी, इसमें जो फर्स्ट क्रस्ट है अर्थ की, उसके बारे में नहीं बताया था कि मतलब दिस थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट क्रस्ट, it was not originally a part of the early plate tectonics theory. It was later on added into this plate tectonic theory in somewhere around 1970s या 80s में हुआ था. एक माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऐड करी थी इसमें, and what we today have is a comprehensive theory. So earlier this microplate tectonic theory which discussed about the first crust formation and evolution, ये प्लेट टेक्टोनिक का ओरिजिनली पार्ट नहीं था. सो यही हमारा टॉपिक है आज के डिस्कशन का, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट. हमने ये देख लिया कि इट इज अर्थ क्रस्ट इज नॉट होमोजेनस, द ओशंस आर नॉट परमानेंट, दे आर रिसाइकलिंग, whereas the continents are permanent. फिर they are both oceanic, the continent of today's time and the earth's crust are product of billions of year of evolution. And then fifth point we saw कि जो plate tectonic theory हमने पढ़ी थी 1960s में, उसमें initially it didn't discussed about the first crust and the origin of the first crust and its evolution. उसके लिए फिर 1970s and 80s में एक micro plate tectonic theory डेवलप हुई थी. आई होप दिस इज क्लियर, एंड नाउ we can discuss our main topic of the day, which is the origin and evolution of the Earth's crust. So, let us discuss microplate tectonics theory. अब ये theory क्या कहता है? It is basically divided into some parts. It all starts with primordial Earth. So, we have primordial Earth, कुछ इस टाइप की एक अर्थ है, एंड इट इज वेरी वेरी हॉट, वन से वेरी 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 हॉट, बहुत गर्म है ये, एंड प्लस इट इज वेरी फ्रेजाइल. दिस इज हाउ द प्राइमोर्डियल अर्थ वॉज, एंड यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है इसमें, लाइक द एटमॉस्फेयर वी हैव टुडे, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर एट दिस स्टेज. अब होता क्या है, व्हेन देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तो ये अर्थ है. आज क्या होता है, जैसे आज तो वी हैव अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इफ सम स्पेस डेब्रिस, इफ सम मीटराइट कम्स, तो वो यहाँ पे बर्न हो जाता है, देयर आर चांसेस ऑफ इट गेटिंग बर्न. पर जब ये एटमॉस्फेयर ही नहीं था, तो मल्टीपल meteorites came from different sites and they impacted the earth. So this is your earth's crust which is already very very hot and very very fragile. अब इसके अंदर भी अगर अर्थ के अंदर देखें, सपोज दिस इज, इमेजिन दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब इस अर्थ के सरफेस के अंदर डीप डाउन भी यहाँ पे तो वो कन्वेक्शन सेल्स चल ही रहे हैं ना, मेंटल प्लूम वाले. तो these cells are rotating inside, मतलब powerful convection current of mental is operating within the earth.
तो अंदर से एक प्रोसेस चल रही है कुछ इस तरह से। तो कुछ इनर सर्कुलेशन है अर्थ की एंड वो क्रस्ट को इम्पैक्ट कर रही हैं, प्लस फिर ये एक्सटीरियर से भी मीटेरॉइड्स आके इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अब इसको हम एज अ सेकेंड स्टेज भी ले सकते हैं, ये पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में फिर समराइज कर दूंगा। इससे क्या होता है, ये जो अर्थ है इट वॉज वेरी फ्रेजाइल, तो इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग क्रैक्स, कुछ इस तरीके के क्रैक्स आ जाएंगे। अब जहां जहां पे भी क्रैक्स आएंगे वहां से दिस मैग्मा विल कम आउट। क्योंकि यहाँ पे तो अंदर सर्कुलेशंस चल रहे हैं विद इन द अर्थ्स इंटीरियर, देयर आर सर्कुलेशंस हैपनिंग। और जैसे ही ये क्रैक्स होंगे देयर विल बी मैग्मा इरप्शन, जिसको हम कह सकते हैं क्या, इट इज नोन एज योर वॉल्केनिक इरप्शन। तो न्यूमरस वॉल्केनिक इरप्शंस हुए अर्थ में। इसके बाद क्या हुआ, अब आपने ये पहले भी हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा है कि विद इरप जैसे जैसे ये इरप्शन होगा, सपोज देयर इज अ इरप्शन, तो विद इरप्शन देयर इज अ कंटिन्यूअस पार्शियल मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ द रॉक्स। भाई रॉक्स इरप्ट करेंगी एंड देन दे विल अंडरगो द पार्शियल मेल्टिंग प्रोसेस, बिकॉज जो लावा उस टाइम पे निकला है इट इज वेरी 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 मेफिक इन नेचर, बहुत डेंस है। तो क्या होगा, ये बार बार सबडक्ट होता जाएगा। सो सपोज दिस इज योर सरफेस, या आई शुड ड्रॉ इट लाइक, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। दिस इज योर सरफेस, यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हुआ, वेरी वेरी मेफिक मैग्मा केम आउट। अब ये तो बहुत ही डेंस है, दिस विल फ्लो। अब व्हेन दिस विल फ्लो व्हाट विल हैपन, कि ये एक्सटेंड होता जाएगा एंड देन इट विल गेट सबडक्ट। सो दिस विल सबडक्ट अगेन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये यहाँ पे फ्लोर बनेगा एंड क्योंकि ये मेंटल सेल्स इसको ड्राइव कर रहे हैं तो इट विल गेट सबडक्ट। देन व्हेन इट विल गेट सबडक्ट, मान लो कि लेट मी शिफ्ट दिस डायग्राम अ बिट, मान लो कि ये यहाँ पे सबडक्ट हो गया। नाउ दिस वेरी वेरी मेफिक मैग्मा इज सबडक्टेड, इसकी होगी पार्शियल मेल्टिंग, देन अगेन इट विल कम अप। हाउ इट विल कम अप, यहाँ पे एक प्लेट और बना लेते हैं। इट विल कम अप इन द फॉर्म ऑफ न्यू मिड ओशनिक रिज, कुछ इस तरह से ये फिर से ऊपर आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो बहुत 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 इट अर्लियर इट वाज वेरी 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 मेफिक, नाउ इट विल गेट ट्रांसफॉर्म टू वेरी वेरी मेफिक। फिर यहाँ से एक और बार पार्शियल मेल्टिंग होगा तो इट विल बिकम वेरी मेफिक एंड देन फाइनली इट विल बिकम मेफिक। सो दिस प्रोसेस आफ्टर रिपीटेड पार्शियल मेल्टिंग will create your first mafic and basaltic ocean slab। अब जाके there will be a formation of your first continental ocean slab। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बनाया था, असली में ऐसा प्लेट्स होंगे नहीं उस टाइम पे। हाउ इट विल ऑपरेट, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर अर्थ, very very mafic magma, very very mafic magma will come out, move a bit, get subduct, ठीक है, comes out, it gets subduct, यहाँ से देन इट विल अगेन रिवॉल्व, अगेन कम आउट। इसी तरह से इसका सर्कुलेशन चलता रहेगा। इट विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग, कम्स अप, डाइवर्जेस, कन्वर्जेस, ये काम चलता रहेगा। तो इससे होता क्या है,
इससे द वेरी वेरी वाला मेफिक मैग्मा विल देन फाइनली एक एक कहीं पे आके फर्स्ट मेफिक बसाल्ट ओशन स्लैब क्रिएट हो जाएगा. सो दिस ओशन बसाल्ट नाउ इट विल अगेन गेट सबडक्टेड, क्योंकि ये वाला के भी तो सबडक्ट होगा ना, क्योंकि ये प्लेट्स रिमेंबर ये ऐसे चल रही हैं, देन इट विल गेट सबडक्टेड. अब जब बसाल्ट को हमने देखा है ऑलरेडी कि जब बसाल्ट का सबडक्शन होता है, सो व्हाट इट फॉर्म्स योर कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो दिस इज हाउ वी विल हैव आवर फर्स्ट कॉन्टिनेंट. बहुत माइक्रो कॉन्टिनेंट होगा क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे प्लेट्स हैं. सो जब इसकी भी पार्शियल मेल्टिंग हो जाएगी, देन वी विल गेट आवर फर्स्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट. रिमेंबर हमने पार्शियल मेल्टिंग में पढ़ा था, पीरियोलाइट से बनता है बसाल्ट, बसाल्ट से बनता है एंडेसाइट, एंड एंडेसाइट से बनता है ग्रेनाइट. दीज टू आर द कॉन्टिनेंटल वाले हिस्से, ये वो हैं. सो दीज फर्स्ट कॉन्टिनेंट्स, ये जो अब बने हैं, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, और इसलिए हम इनको टर्म देंगे एज माइक्रो कॉन्टिनेंट. ये तो अभी पूरे कॉन्टिनेंट हैं भी नहीं उतने बड़े. सो दीज आर योर फर्स्ट माइक्रो कॉन्टिनेंट्स. अब क्या होगा, जैसे सपोज दिस इज द अर्थ, मल्टीपल पार्शियल मेल्टिंग हो चुकी है, एक माइक्रो कॉन्टिनेंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ऐसे करके ना बहुत सारे माइक्रो कॉन्टिनेंट हैं. जैसे हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं, तो वी मेक वर्ल्ड मैप लाइक दिस, कि जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये हमने यूरोप, ऐसा कुछ रफली एक यूरोप बना लिया. देन यू हैव योर अफ्रीका हेयर, देन इंडिया वाला पार्ट, और फिर ऐसे ऐसे हमें दिखता है ग्लोब पे मैप. तो उसी टाइप से उतने बड़े कॉन्टिनेंट्स नहीं, उससे बहुत छोटे छोटे, ऐसे कर करके बहुत सारे छोटे 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 n number of microcontinents got formed from this partial melting process. And these microcontinents, once they are formed, we all know that they will resist subduction. क्यों? Because they are very lighter as compared to the oceanic crust, and they are very less dense. तो जो बहुत लाइट है और जो लेस डेंस है वो तो सबडक्ट करेगा नहीं, मगर ड्रिफ्टिंग पॉसिबल है कॉन्टिनेंट्स में. ये हमने पढ़ा है कि ड्रिफ्टिंग, ब्रेकिंग, ये सब पॉसिबल है. सबडक्शन नहीं होगा, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बट ड्रिफ्ट विफ्ट तो वो कर सकता है. तो व्हाट विल हैपन कि दे विल स्टार्ट मूविंग ऑन द अर्थ सरफेस. अब मान लो ये सारे कहीं कहीं मूव कर रहे हैं, ये इधर आया, ये इधर आया. सो व्हाट विल हैपन इज, करके दिखाता हूँ. जैसे ये एक प्लेट है, ये मूव करके यहाँ आ गई, ये प्लेट है, मूव करके यहाँ आ गई, ये प्लेट मूव करके यहाँ आ गई, ये मूव करके यहाँ आ गया, this moved here, this combined moved here, these two moved here. ऐसे रैंडम बना रहा हूँ मैं तो बस समझाने के लिए कि हाउ द मूवमेंट हैज हैपेंड. तो ये ऐसे ऐसे मूव करके ये प्लेट्स केम टुगेदर एंड दे कोलाइडेड, और इससे क्या हो गया, इससे एक ये बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया, ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया, ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया. तो ये सब आपस में फ्यूज हो गए एंड देन दे फॉर्म द बिगर कॉन्टिनेंट्स. सो इस टाइप की देयर वर अ सीरीज ऑफ कोलिजन एंड ब्रेकिंग अपार्ट, and then they again fused back, and then they eventually became larger and bigger. And the initial crust, that was basaltic and oceanic, got slowly transformed into continental crust. So यहाँ से शुरू किया था हमने, एक basaltic oceanic slab था. What has it become now? It has, after partial melting and millions of years of evolution में, it has now become the continental crust which we can see even today. So इस तरह के जो कुछ सुपर कॉन्टिनेंट्स हमारे अर्थ की हिस्ट्री में पहले हुए हैं, कुछ उनके एक फैक्चुअल कुछ नाम वगैरह हैं, वो बता देता हूँ, देन विल डिस्कस उसके बाद का फिर. तो ऐसे बहुत सारे सुपर कॉन्टिनेंट्स अर्थ की हिस्ट्री में बन चुके हैं. उनमें से कुछ एग्जांपल्स लिस्ट कर देता हूँ. जैसे वी हैव दिस वालबारा
supercontinent. Then we had this Ur supercontinent. We have Kenorland supercontinent. We have Antarctica supercontinent. And मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाई है. रिमेंबर द प्री कैम्ब्रियन एज. इसमें समवेयर अराउंड 700 से 500 मिलियन ईयर्स अगो के बीच में देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज नोन एज रोडिनिया. अब ये सुपर कॉन्टिनेंट क्या है? दीज आर जस्ट दीज कॉन्टिनेंट ओनली. मैंने बताया ना कि ये कभी आपस में टकरा के एक बड़ा कॉन्टिनेंट बन जाएंगे, देन दे अगेन ड्रिफ्ट, ब्रेक, मूव अपार्ट. ये प्रोसेस बहुत बार चलती रहेगी. फिर ऐसा होगा कि ये साथ में आएंगे, कुछ मिलियन साल बाद एक अलग कॉन्टिनेंट बन जाएंगे. सो ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, दीज आर नथिंग बट दिस प्रोसेस से बने हुए कॉन्टिनेंट्स ओनली. वल्बारा, और क्योनरलैंड, एंटार्क्टिक. और प्री कैम्ब्रियन पीरियड में we have Rodinia. Rodinia is basically, this Rodinia supercontinent is also known as the Pangaea one. Remember continental drift theory में Alfred Wegener was talking about Pangaea. ये Pangaea वो Pangaea नहीं है. This is Pangaea one. अब ये जो Rodinia है, इसके साथ भी यही होगा. जो प्रोसेसेस यहाँ ऑपरेट कर रही हैं, दिस विल ऑल्सो ब्रेक. तो सपोज कि ये रोडिनिया था, इट गॉट ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस. ये कुछ पीस यहाँ आ रहे हैं, कुछ पीस कहीं जा रहे हैं. इट गॉट ब्रेक. अब कुछ मिलियन साल बाद क्या होगा? दिल अगेन ड्रिफ्ट, दिल अगेन कोलाइड, एंड दिल अगेन फॉर्म अ कॉन्टिनेंट. ये कुछ ऐसे बन जाएंगे. ठीक है. एक कुल मिला के एक सुपर कॉन्टिनेंट फिर से बनेगा. नाउ दिस सुपर कॉन्टिनेंट विच विल फॉर्म वंस द रोडिनिया इज ब्रोक डाउन. तो पहले तो ये रोडिनिया को हमने ब्रेक कर दिया. अब ब्रेक के बाद ये फिर से फ्यूज करेगा. बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में आके फिर से फ्यूज करेंगे. अब जो बनेगा दैट इज योर Pangaea 2. And this is the Pangaea which Alfred Wegener talked about in his continental drift theory. Remember ये somewhere around 200 million years ago ये वाला Pangaea बनता है. So इसी स्टेज के जो मल्टीपल इवोल्यूशन है, उसी के मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं. अब ये जो रोडेनिया है, इसके जो ब्लॉक्स जब फ्यूज हुए थे इन द पैलियोजोइक फेज, सो उसके वजह से देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ टू मेजर फोल्ड माउंटेन. सो इसको आप हेडिंग डाल सकते हैं, फोल्ड माउंटेन बिल्डिंग इन द फेज ऑफ पैलियोजोइक टाइम. इसमें जो दो फोल्ड माउंटेन्स हैं, द इम्पोर्टेंट वन इज द कैलिडोनियन फोल्ड माउंटेन्स. इसमें वी हैव एग्जांपल ऑफ माउंट जोलन. वी राइट एज KJOLLAN, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं एज जोलन. दिस इज इन द यूरोपियन पार्ट, जहाँ पे आपका ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह है. दीज माउंटेन रेंजेस आर formed there. And then another we have is the HERCY, Hercynian, या इसको वार्स्कन फोल्ड माउंटेन फेस बिल्डिंग भी बोलते हैं. इसमें वी हैव द उराल्स फॉर्मेशन. उराल्स आर इन रशिया, यूरोप वाला बॉर्डर. एंड देन ऑल्सो द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. दिस वी हैव इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. तो ये बना था, कैल्डोनियन बना था सिलूरियन या डेवोनियन पीरियड के बीच में कहीं पे. एंड दिस वाज फॉर्म्ड इन द कार्बोनिफेरस एंड परमियन पीरियड. रिमेंबर कॉस डी कैप. मैंने ये एक शॉर्ट फॉर्म बताया था ऑफ हाउ टू रिमेम्बरिंग ओडोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, कैम्ब्रियन. कैसे याद करना है ऑफ द पेलोजोइक एरा में जो पीरियड्स थे उसका. सो these were the phases.
जो हमें पता होना चाहिए. Then this Pangea of Wegener, it broke around Mesozoic time, 180-200 मिलियन साल पहले. This was the Mesozoic time. And the continents, यहाँ से आगे का तो आपको पता ही है. मेसोजोइक टाइम के बाद से वी हैव डिस्कस्ड कि ये पैंजिया कैसे टूटा है, कौन सी इसके बीच में वाटर बॉडी थी, एंड हाउ दे हैव मूव्ड एंड इवॉल्व्ड एंड बिकेम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डे. ये तो हम इसकी पूरी हम प्रोसेस देख चुके हैं. सो इट वाज एस्टिमेटेड कि द कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे, मतलब जैसे ये सब आज का फॉर्म में बना है, एक प्रिडिक्शन भी है इसको लेके कि जो आज के सारे कॉन्टिनेंट्स है ना, दीज विल आल्सो कोलाइड. अब ये जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, हम यहाँ पे एशिया है, यू हैव इंडिया हेयर, यू हैव ऑस्ट्रेलिया हेयर, ये सारे कॉन्टिनेंट्स भी कुछ इसी तरह से दे विल अगेन फ्यूज बैक एंड दे विल कोलाइड, एंड ये लोग एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना सकते हैं आफ्टर अराउंड 130 to 150 मिलियन ईयर्स अगो. तो ठीक है, हम लोग नहीं रहेंगे वो सब देखने के लिए, बट इट विल हैपन. तो अर्थ पे प्रोसेसेस हैव इवॉल्व लाइक दिस. सो आई थिंक दिस पार्ट of the origin, this topic of the origin and evolution of the earth's crust is clear. Let me quickly summarize it कि हमने क्या क्या देख लिया. तो यहाँ तक को तो क्लियर था. देन we saw in the microplate tectonic theory कि there was a primordial earth, very fragile, very hot, no atmosphere. उसकी वजह से क्या हुआ, there was meteorite impact, प्लस जो अंदर कन्वेक्शन सेल्स ड्राइव कर रहे थे, कन्वेक्शन मेंटल प्लूम्स जो थे, उनका इम्पैक्ट था. उससे क्या हुआ, न्यूमरस वॉल्केनिक इरप्शंस हुए. वॉल्केनिक इरप्शंस में क्या बाहर आया, अ वेरी 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 मेफिक मैग्मा जो कि बहुत डेंस था. तो इट वेंट अंडर द प्रोसेस ऑफ पार्शियल मेल्टिंग. उससे क्या हुआ, मल्टीपल साइकिल्स के बाद दिस वेरी 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 मेफिक कन्वर्टेड इनटू द मेफिक बसाल्टिक ओशन स्लैब. फर्स्ट बसाल्टिक ओशन स्लैब बनी. देन दिस विल ऑल्सो अंडरगो सबडक्शन. इससे क्या होगा, इससे विल गेट द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. इस तरह का प्रोसेसेस मल्टीपल जगहों पे हो रहा था. तो क्या हो गया, वी गॉट मल्टीपल वेरी वेरी स्मॉल कॉन्टिनेंट्स जिनको हमने नाम दिया द माइक्रो कॉन्टिनेंट्स. ये माइक्रो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, दे विल, पहली प्रॉपर्टी तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की क्या है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है. ये फ्यूज हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, ड्रिफ्ट अपार्ट कर सकती है, बट डिस्ट्रॉय नहीं होती है. तो ये थ्रू आउट द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हमने देखा, प्री कैम्ब्रियन ट्राइब से, पैलियोजोइक टाइम से लेके मेसोजोइक टाइम से लेके टिल द प्रेजेंट टाइम, ये वाले सब छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कई बार फ्यूज होके एक सुपर कॉन्टिनेंट बने हैं. एंड देन ये सुपर कॉन्टिनेंट अगेन ब्रेक करके छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट हुआ है. एंड देन फिर अगेन ओवर द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ ये वापस से फ्यूज होके बड़े बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स बने. उनके हमने कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखे. एंड देन वी ऑल्सो सेट कि जैसे ये प्रोसेस हिस्ट्री में चलती आई है, आज वी हैव द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स भी अराउंड 130 to 150 मिलियन ईयर्स अगो के बाद जाके दे विल कोलाइड एंड दे विल अगेन फॉर्म अ large supercontinent. So this is your origin of the first continental crust, the first continent, and the evolution, how they have evolved and throughout the history वो कैसे कैसे रहे हैं and आज वो कैसे दिखते हैं. So I hope this is clear. इसमें इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने का है नहीं. So yeah, that's it for this one.